Today is our part number 2 for metals and non-metals, and part 1 we are already discussed, and today we start the second part. And in the second part we are discuss about the various aspects, that is, first is the properties of the ionic compounds, second is the occurrence of metals, next occurrence of metals from the ores, and for the extraction of metals from the ores we apply the 3 steps for the extraction of metals from the ores. First step is the enrichment of the ores, second is extraction of the metals, number 3 refining of metals, next corrosion, and the last topic for the metals and the non-metals is prevention of corrosion. So let us start from properties of the ionic compounds. First property of the ionic compound is physical nature. In physical nature, they are solid and hard and generally brittle. जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर जनरली सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं एंड जनरली क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं. ब्रिटल मीन्स दे कैन बी इजिली कट. उनको हम जैसे सपोज करो आपके पास कोई मार्बल वगैरह या कुछ है, तो अगर हम उसको हैमर वगैरह से उसको अगर हम तोड़ते हैं तो दैट मीन्स इट कैन बी इजिली ब्रेकेबल. सो दिस इज द फिजिकल नेचर ऑफ द आयनिक compound. Second physical property of the ionic compounds is melting and boiling points. Ionic compounds have generally high melting and boiling points. जो आपके ionic compounds होते हैं they have generally high melting and boiling point. इनके melting और boiling point होते हैं वो generally क्या होते हैं, high होते हैं. Next property of the ionic compounds is solubility. That is ionic compounds soluble in water. Ionic compound जो होते हैं वो ज्यादातर वाटर में जो होते हैं वो soluble होते हैं, but not in kerosene and petrol. पर केरोसिन और पेट्रोल में ये soluble नहीं होते हैं. Next is the conduction of electricity. Conduction of electricity means अगर ये electricity को conduct करते हैं, that means they are the good conductor of electricity. अगर ये electricity को conduct नहीं करते हैं, that means they are the poor conductor of electricity. अगर ये good conductor electricity के, that means यहाँ से electricity होगी that is transfer from one place to another place. They conduct electricity in molten state and solution form. Ionic compounds जो होते हैं वो ज्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी को जो कंडक्ट करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, मॉल्टन स्टेट. मॉल्टन स्टेट मींस एक पिघली हुई फॉर्म जो होती है उसमें ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, दैट इज द मॉल्टन स्टेट. या फिर सॉल्यूशन फॉर्म में ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बट नॉट इन द सॉलिड फॉर्म. पर ये सॉलिड फॉर्म में जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं. आफ्टर द properties of the ionic compounds, next is the occurrence of metals. metals की occurrence जो है वो कहाँ है, कहाँ मेटल जो है वो नेचर में पाए जाते हैं. तो for the occurrence of the metals there are 3 steps that we have to be taken. First is the minerals, second is the ores, and the third one is the gangue. Minerals क्या होते हैं, the elements or the compounds which occur naturally in the earth crust. ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे कंपाउंड्स जो कि नेचुरली कहां पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं. अर्थ क्रस्ट का मतलब हो गया जमीन पर या जमीन की सतह पर जो पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज द मिनरल्स. उनको हम क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं. द एलिमेंट्स ऑफ द कंपाउंड्स व्हिच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, दे आर कॉल्ड एज द मिनरल्स. आफ्टर द मिनरल्स द सेकंड वन इज द ओर्स. Ores क्या होते हैं, minerals that contain very high percentage of particular metal and the metal can be profitably extracted from it. Such minerals are called as the ores. Ores वो होते हैं जो कि minerals जो होते हैं जो contain करते हैं high percentage of particular metal. मतलब अब हमारा जो नेचर में है वो क्या पाए जाते हैं, ओर्स और गैंग पाए जाते हैं. तो यहाँ ये कहा जाए कि ऐसे मिनरल्स जो कंटेन करते हैं हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, किसी भी पर्टिकुलर मेटल की जो हाई परसेंटेज जो होंगे वो मिनरल्स कंटेन करेंगे, या फिर उस मेटल को कंटेन करने के बाद उस मेटल को प्रॉफिटेबली क्या किया जाएगा, एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, उस मेटल को अलग किया जाएगा
एक्सट्रैक्टिव फ्रॉम इट्स मिनरल्स। और उस मेटल को एक्सट्रैक्ट कहां से किया जाएगा, अलग किस चीज से किया जाएगा, मिनरल से किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज द ओर्स। मतलब ओर्स क्या है, मिनरल्स जो है वो हाई परसेंटेज में किस चीज को कंटेन करते हैं, एक पर्टिकुलर मैटर को कंटेन करते हैं, और उस मैटर को कंटेन करने के बाद उसको प्रॉफिटेबली क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अलग किया जाता है, अलग जो है उसके मिनरल से किया जाता है, एंड दैट फॉर्म इज कॉल्ड एज द ओर। After the ore, the last is the gangue. Gangue क्या होता है, ores are usually contaminated with large amount of the impurities. जो ores हैं, ore में large amount की क्या होती है, impurities होती हैं, किस फॉर्म में होती है, such as sand and soil। क्योंकि जब कोई धरती से चीज निकलती है तो उसमें large amount of क्या होती है, impurities होती हैं, और वो impurities किस फॉर्म में होती है, sand और soil की फॉर्म में, such as soil and sand, and they are called as the gangue। तो गैंग हमारा क्या हो गया, जो ओर्स हैं दे आर यूजुअली कॉन्टेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ द इम्प्योरिटीज, एंड दैट इम्प्योरिटीज आर इन द फॉर्म ऑफ ओर्स एंड दैट इम्प्योरिटीज आर इन द फॉर्म ऑफ सॉइल एंड सैंड, एंड दे आर कॉल्ड एज द गैंग। सो दिस इज द occurrence of the metals. After the occurrence of the metals, the next step is extraction of metals from ores। मतलब मेटल्स को हम ओर से किस तरह से अलग कर सकते हैं। दैट मीन्स अभी मैंने कहा था कि नेचर से हमें जो चीजें मिलती हैं, दैट इज द गैंग एंड द ओर, गैंग एंड ओर। दिस इज इन द इम्प्योरिटी फॉर्म। अब इन इम्प्योरिटीज को हमने अलग करना है मेटल से, तो उसके लिए क्या है, हमें वी हैव टू अप्लाई द 3 स्टेप्स। उसके लिए हमें 3 स्टेप्स अप्लाई करने पड़ेंगे जब हमने मेटल्स को उनके ओर से एक्सट्रैक्ट करना है। First step is the enrichment of the ores. Second step is the extraction of metals. And the last is the refining of metals. सबसे पहले हमें क्या है कि हमें जो जमीन से जो है, ये अर्थ से जो है, वो हमें क्या मिले, गैंग और ओर। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, गैंग को खत्म करना है। गैंग को खत्म करने के बाद अब जो ओर्स है, ओर्स को हम क्या करेंगे, मेटल से रिफाइन करेंगे, अलग करेंगे। फिर मेटल से वो अलग होने के बाद फिर हम उसको क्या करेंगे, रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स। और जब वो रिफाइनिंग हो जाएगी मेटल्स की, दैट मीन्स दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मेटल्स। सो फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप जो है हमारा, वो क्या है, एनरिचमेंट ऑफ द ओर्स। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग फ्रॉम द ओर्स। इस प्रोसेस में हमने क्या करना है, इस प्रोसेस में हम रिमूव करेंगे, किसको रिमूव करेंगे, गैंग को ओर से। पर जब हम अर्थ क्रस्ट से कोई चीज, कोई मेटल निकाल रहे हैं, तो वहां से हमें उसके साथ इंप्योरिटीज निकलती है, और वो इंप्योरिटीज किस फॉर्म में होती है, गैंग और ओर्स की फॉर्म में। तो एनरिचमेंट ऑफ ओर्स की प्रोसेस में हम क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे, किसको रिमूव करेंगे, गैंग को रिमूव करेंगे। कहां से रिमूव करेंगे, ओर्स से। These techniques methods are used in this process। तो कुछ टेक्निक्स हैं और कुछ मेथड्स हैं जो हम किस प्रोसेस के लिए यूज करेंगे, एनरिचमेंट ऑफ द ओर्स के लिए यूज करेंगे। तो फर्स्ट मेथड इज द हाइड्रोलिक वॉशिंग, सेकेंड स्टेप इज द मैग्नेटिक सेपरेशन, थर्ड इज द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, एंड द लास्ट इज द केमिकल सेपरेशन ऑफ द लीचिंग। अब इनको हम 1 बाय 1 करके डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट पेज पर। सबसे पहले हम लेंगे हाइड्रोलिक वॉशिंग। नेक्स्ट मेथड ऑफ द एनरिचमेंट ऑफ द ओर्स, द फर्स्ट मेथड इज द हाइड्रोलिक वॉशिंग या फिर ग्रेविटी सेपरेशन। हम इसको हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोलते हैं और ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं। अब ये जो मेथड है, इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, क्रश्ड ओर्स वॉश्ड बाय वाटर स्ट्रीम। जो भी क्रश्ड ओर्स होंगे, सबसे पहले हमने ये कहा था कि जो हमें अर्थ से चीजें मिलती हैं, दैट इज द ओर एंड गैंग। ये 2 चीजें हमें जो अर्थ से मिलती हैं, जो कि क्या होती है, इम्प्योर फॉर्म में। अब हमें ओर को गैंग से अलग करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये क्या करेंगे, ओर और गैंग का जो है वो हम एक क्रश्ड पाउडर बना लेंगे, और उस क्रश्ड पाउडर को फिर क्या करेंगे, हम उसको वॉश करेंगे पानी के साथ। तो इसमें क्या कहा गया कि इन दिस प्रोसेस क्रश्ड ओर्स वॉश्ड बाय वाटर स्ट्रीम। जो भी क्रश्ड ओर होंगे हमारे, उनको हम क्या करेंगे, वाटर स्ट्रीम के साथ वॉश करेंगे। इफ एन ओर इज डेंसर देन गैंग, अगर हमारा ओर जो है वो डेंसर देन गैंग है, या उसका जो डेंसिटी जो है वो
ओर की जो डेंसिटी है वो गैंग से ज्यादा है, देन द गैंग पार्टिकल्स आर वॉश्ड अवे विद वाटर स्ट्रीम। तो उस वजह से जो गैंग पार्टिकल्स होंगे वो वाटर के साथ इजिली क्या हो जाएंगे, वॉश हो जाएंगे, एंड हैवी ओर्स जो होंगे वो रिमेन बिहाइंड, और जो हैवी ओर्स होंगे वो वहां पर क्या रह जाएंगे, और जिसकी डेंसिटी कम थी, जैसे कि गैंग हमने कहा कि उसकी डेंसिटी कम है, और डेंसिटी कम होने की वजह से वो वाटर के साथ इजिली क्या कर जाएगा, वॉश हो जाएगा, और वॉश होने के बाद क्या होगा, वो निकल जाएगा वहां से, और जो हैवी पार्टिकल्स है हमारे, जो कि हैवी जिसकी डेंसिटी ज्यादा थी वो थे ओर से, और वो क्या हो जाएंगे, रिमेन बिहाइंड, वो हमारे ऊपर रह जाएंगे। डायग्रामेटिकली अगर हम देखते हैं तो अगर हमें हाइड्रोलिक वॉशिंग के लिए हमें एक स्वैग टेबल की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि हमने क्या किया हुआ है कि ये एक कोन ली हुई है, जिसमें कि हमने क्रश्ड ओर डाला हुआ है, जिसमें हमने गैंग और ओर का एक क्रशिंग की, उसका पाउडर बनाया, तो उस पाउडर को हमने कोन में डाला हुआ है, और उस कोन में डालने के बाद हमने क्या किया, एक स्वैग टेबल जो है, इसमें क्या होते हैं, एक डग होते हैं या खड्डे होते हैं उसमें, जो कि क्या करते हैं, उस चीज को स्टोर कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसमें क्रश्ड पाउडर डालेंगे और ऊपर से वहां से पानी का फ्लो जो है वो वहां से चला देंगे, तो जो हैवी पार्टिकल्स है, जैसे कि ऑटोमेटिकली अभी हमने कहा कि जो ओर्स उनकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द गैंग की, तो जो हैवी पार्टिकल्स है हमारे ओर्स के, वो क्या होंगे, वो इन खड्डों के बीच में जो होंगे वो स्टे हो जाएंगे, वो यहां पर रुक जाएंगे, और जो लाइट पार्टिकल्स है हमारे गैंग के, वो क्या करेंगे, वो पानी के साथ, जो वाटर के साथ वो क्या करेंगे, वॉश हो जाएंगे, और वो यहाँ पर स्टोर टैंक में जो होंगे वो स्टोर हो जाएंगे, और जो हैवी पार्टिकल्स जो थे वो हमारे डग या खड्डों में जो होंगे वो स्टोर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हाई द हाइड्रोलिक वॉशिंग वी कैन इजिली सेपरेट ओर फ्रॉम द गैंग, तो हमारे जो ओर जो होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, वो यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे, और जो गैंग होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो वाटर के साथ वॉश अवे हो जाएगा। सो दिस इज द मेथड फॉर द हाइड्रोलिक वॉशिंग एज वेल एज ग्रेविटी सेपरेशन, एंड बाय दिस मेथड वी कैन इजिली सेपरेट द ओर्स फ्रॉम द गैंग। और इसमें और कौन से ओर्स हैं हमारे हाइड्रोलिक वॉशिंग के, फॉर एग्जांपल हमारे ओर्स है, टिन के ओर्स है या फिर लेड के ओर्स है। अगर हमारे टिन के ओर्स है या लेड के ओर्स है, by this method hydraulic washing as well as gravity separation we can also refine the ores of the tin as well as the lead, and also used in the gold refining. This hydraulic washing as well as gravity separation is also used in the gold refining. जैसे कि भी हमने कहा है कि गोल्ड जो है वो हमें अर्थ में जो है वो फ्री स्टेट में मिलता है, और फ्री स्टेट में होने की वजह से उसके साथ इंप्योरिटी जो होती है वो सैंड भी होता है, सॉइल भी होती है, तो नंबर ऑफ इंप्योरिटीज जो होंगी वो गोल्ड के साथ होंगी। पर अगर हमने उन इंप्योरिटीज को अलग करना है, दैट मींस वी कैन इजीली रिमूव दैट इंप्योरिटीज बाय द मेथड ऑफ हाइड्रोलिक वॉशिंग एज वेल एज ग्रेविटी सेपरेशन। एंड द नेक्स्ट मेथड फॉर द एनरिचमेंट ऑफ द ओर्स इज द मैग्नेटिक सेपरेशन। अब मैग्नेटिक सेपरेशन जो है, दिस मेथड वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक प्रिंसिपल। मैग्नेटिक सेपरेशन का जो मेथड है वो किसके ऊपर बेस्ड करता है, मैग्नेटिक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड करता है। तो हमें जो आपसे चीजें मिल रही है वो मिल रही है गैंग एंड ओर। अब इस गैंग और ओर को हम क्या करेंगे, एक क्रश पाउडर बनाएंगे। तो मैग्नेटिक सेपरेशन जो है ये मेथड जो किसके ऊपर बेस्ड करता है, मैग्नेटिक प्रिंसिपल के ऊपर। दिस मेथड अप्लाई व्हेन ओर एंड गैंग पार्टिकल्स। इस मेथड को हम कब अप्लाई करते हैं, जब ओर एंड गैंग पार्टिकल्स होंगे हैव डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। दैट मींस मैग्नेटिक प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन दैट कंडीशन व्हेन both gang as well as ore particles have the different magnetic properties। तो अगर ओर या गैंग में से भी जिस मेटल के पास भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी, दैट मींस ये मेथड जो होगा ये उस प्रिंसिपल के ऊपर जो वो बेस्ड करेगा। तो डायग्रामेटिकली अगर हम देखते हैं तो उसमें हमने क्या किया है, एक कोन ली हुई है, कोन में हमने जो है वो क्रश्ड पाउडर डाला हुआ है, और वो क्रश्ड पाउडर किस चीज का है, गैंग और ओर का। एंड दिस इज द रोटेटिंग व्हील, ये हमारी रोटेटिंग व्हील है, और उस व्हील में हमारे क्या है, दो व्हील लगे हुए हैं। एक व्हील जो है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा है, जिसमें कि मैग्नेट नहीं है, और सेकंड व्हील जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, क्योंकि उसमें क्या है, मैग्नेट लगा हुआ है। तो जैसे ही हमारे स्पून से जो है वो क्रश्ड पाउडर जो होगा गैंग और ओर का वो
नीचे गिरना शुरू हो जाएगा तो उसमें जो होंगे वो पार्टिकल जो होंगे बोथ गैंग और के वो रोटेटिंग व्हील के साथ जो होंगे वो क्या करना शुरू कर देंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। और जिस मेटल के पास जो होगी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, दैट मींस वो इस व्हील के साथ जो होगा वो उस पहिए के साथ लगता जाएगा और उसके साथ अटैच होने के बाद वो नीचे की तरफ को गिरते जाएंगे। और जो हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा, दैट मींस वो क्या होगा, वो साइड में गिरता जाएगा। तो यहां से हमारा जो है वो और एज वेल एज गैंग जो है वो दोनों की प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग हो गई है। कहाँ जो मैग्नेट के साथ अटैच हो गया है दैट इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और जो नहीं अटैच हुआ है दैट इज नॉट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो जो हमारे मैग्नेट के साथ अटैच हो रहे हैं, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं, दैट मींस वो हमारा क्या हुआ, और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा है दैट इज गैंग। So by this method we can easily extract the metals from their ores as well as their gangue। तो हमें ore जो होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, वो हमारे रोटेटिंग व्हील के साथ हमें मिल जाएंगे, और जो गैंग जो हमारी इंप्योरिटीज की फॉर्म में है वो क्या होगा, वो साइड में गिरती जाएंगी। तो दिस इज द मेथड ऑफ द मैग्नेटिक सेपरेशन, एंड बाय दिस मैग्नेटिक सेपरेशन वी कैन इजिली extract the metals from their ores। Next process for the enrichment of the ores is froth flotation process, and in froth flotation process it is a process for separating hydrophobic and hydrophilic materials। froth flotation process एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम सेपरेट करते हैं हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक मटेरियल्स को। तो सबसे पहले हमने कहा था कि हमें अर्थ से जो चीजें मिलती है दैट इज द गैंग एंड ओर। हाइड्रोफोबिक जो होंगे, जो कि वेट में ज्यादा होंगे, दैट मीन्स जो कि डिसॉल्व नहीं होते हैं, तो वो कौन से होंगे, और जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं वो क्या है आपके गैंग। तो जो आपके वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे दे आर नोन एज द हाइड्रोफिलिक, एंड जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे दे आर नोन एज द हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक जो है वो हमारे यहाँ पर ओर्स है, और जो हाइड्रोफिलिक है दे आर द गैंग्स। जनरली दिस प्रोसेस यूज्ड फॉर द सल्फाइड ओर्स, स्पेशली फ्रोथ फ्लोटेशन का जो प्रोसेस है वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है, सल्फाइड ओर्स के लिए। एंड एग्जांपल्स क्या है इसके, जिंक सल्फाइड एंड कॉपर सल्फाइड। डायग्रामेटिकली अगर हम देखें कि फ्रोथ फ्लोटेशन की प्रोसेस में ओर्स को और गैंग को कैसे अलग किया जाता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टैंक लेंगे और उस टैंक में जो हमने सॉल्यूशन डालना है वो पाइन ऑयल प्लस वाटर का सॉल्यूशन हम डालेंगे, और उसके बाद जो हमने गैंग और ओर का जो हमने क्रश्ड पाउडर बनाया होगा उस क्रश्ड पाउडर को हम इस टैंक के बीच में डाल देंगे, और उस क्रश्ड पाउडर के साथ जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो होगा पाइन ऑयल प्लस वाटर का। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक पाइप लेंगे और उस पाइप को हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन में डाल देंगे। इस सॉल्यूशन और इस पाइप में जो है वो हमारे एयर प्रेशर जो है वो पोर्स बने हुए हैं, और जैसे ही हम प्रेशर के साथ हम एयर जो है वो इस पाइप में हम जनरेट करेंगे तो क्या होगा, जो हमारे लाइटर पार्टिकल्स हैं जो कि हमारे क्या थे, गैंग थे, और वो गैंग जो होंगे वो वाटर के साथ जो होंगे वो इजिली डिसॉल्व हो जाएंगे, जबकि जो हमारे हैवी पार्टिकल्स हैं ओर्स के वो क्या होंगे, वो फाइन ऑयल के साथ जो होंगे वो चिपक जाएंगे, उसके साथ अटैच हो जाएंगे। और जैसे ही हवा का प्रेशर जो होगा वो जनरेट होगा इस टैंक के अंदर, तो उसके साथ क्या होगा, ये सारे जो होंगे जितने भी हमारे इसमें मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, वो रोटेट करना शुरू कर देंगे, और जैसे ही रोटेशन होगी तो ये जो पाइन ऑयल के जो बबल्स होंगे वो बनना शुरू हो जाएंगे, और ये बबल्स जो होंगे वो फिर वो किस फॉर्म में ऊपर जाएंगे, वो ऊपर जाएंगे झाग की फॉर्म में। झाग जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रोथ, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम जो है वो क्या रखा गया, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो हमें जो यहां पर मिला, हमें जो झाग की फॉर्म में मिला दैट मींस दैट इज द ओर, और जो हमारे सेटल डाउन हो गए नीचे वाटर के साथ जो मिक्स हो गया दैट इज द गैंग। दैट मींस यहां पर हमने गैंग और ओर्स को क्या कर लिया है, सेपरेट कर लिया है। जो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हमारे सेटल डाउन हो गए टैंक में दे आर द गैंग, और जो हमारे फ्रोथ की फॉर्म में या झाग की फॉर्म में जो हमारे बन गए हैं वो हमारे क्या है, ओर्स हैं। तो हमारे
झाग और फ्रो के साथ जो अटैच हुए दे आर द ओर्स, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस. And the last process for the enrichment of the ores is the chemical refining and also known as leaching. हम chemical refining या leaching. This is the last method for the enrichment of the ores. And in this process, ores are soluble and gangs are insoluble. इस process में क्या होता है कि जो ores होंगे they are soluble in water, whereas gangs are insoluble in water. Leaching is done in precious cylindrical vessels. लीचिंग की जो प्रक्रिया है, लीचिंग की जो प्रोसेस है वो सिलिंड्रिकल वेसल्स में होती है और एक बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ जो होती है वो जनरेट होती है. तो इसमें क्या है कि ओर्स जो होते हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं इन द मेटल सॉल्ट्स. इन द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिफाइनिंग और लीचिंग ओर्स कन्वर्ट इन मेटल सॉल्ट. फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो जिंक सल्फाइड जो कि हमारा किस फॉर्म में है, ओर की फॉर्म में है. किस फॉर्म में है, ओर की फॉर्म में. और अगर हम जिंक सल्फाइड को मिक्स करते हैं ऑक्सीजन के साथ और उसमें जो हम केमिकल डालेंगे दैट इज द सल्फ्यूरिक एसिड. और जब हम उसमें उस ओर में हम ऑक्सीजन के साथ उसमें केमिकल अटैच करेंगे और केमिकल जो है वो किस फॉर्म है, सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में है, तो हमारा जो है यहाँ पर जो है वो मेटल सॉल्ट बनेगा. क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट. And this metal salt is in the form of zinc sulfate plus water और सल्फर जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, that is in the form of gas. तो बाद में हम इस जिंक को, इस मेटल को जो होगा वो हम इस सॉल्ट से जो होंगे वो अलग कर देंगे, एक्सट्रैक्ट कर देंगे. That means this metal is extracted from the salt. So these are the processes for the enrichment of the ores. Next step after the enrichment of the ores, the step second is extraction of the metals. So first step from the extraction of metals is extracting metals low in the reactivity or the activity series. extract करेंगे हम metals को जो कि जिनकी रिएक्टिविटी जो है, जिन मेटल्स की रिएक्टिविटी जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे कम है या फिर एक्टिविटी सीरीज में सबसे कम है, उन मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे. तो रिएक्टिविटी सीरीज में हमारा सबसे नीचे लो रिएक्टिविटी में जो आता है दैट इज गोल्ड और उसके ऊपर जो आता है हमारा दैट इज सिल्वर. तो ये हमारे जो है गोल्ड और सिल्वर जो है ये रिएक्टिविटी सीरीज में हमारे सबसे नीचे होते हैं. दैट मींस इनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो सबसे कम होती है और ये इजीली हमें नेचर में फ्री स्टेट में मिलते हैं. और फ्री स्टेट में मिलने की वजह से इन्हें हमें एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है. और गोल्ड और सिल्वर के बाद जो हमें मिलते हैं दैट इज मरकरी एंड कॉपर. ये इससे ऊपर आते हैं, गोल्ड और सिल्वर से ऊपर आते हैं मरकरी और कॉपर. तो ये भी जो है नॉन रिएक्टिव है और इनकी रिएक्टिविटी जो है वो नाम के बराबर है. तो ये जो हमारे हैं रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे जो कम रिएक्टिविटी के जो मेटल्स हैं वो ये हैं. तो इन्हें नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाने की वजह से इन्हें जो हमें एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत जो होती है वो नहीं पड़ती है. तो क्या कहा गया इसमें, दीज मेटल्स आर नॉन रिएक्टिव. ये मेटल जो होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी हमें सबसे नीचे के जो मेटल्स हैं वो नॉर्मली क्या है, नॉन रिएक्टिव है. एंड द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय हीटिंग. और इनके ऑक्साइड्स जो हैं, द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स, इन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं उनको इजीली हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग. थोड़ी सी भी अगर हम इसमें हीट करेंगे तो दीज मेटल्स कैन बी, द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन इजीली रिड्यूस. तो इसमें हम एग्जांपल लेंगे Hg एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सिनाबार. दैट मीन्स हम Hg को क्या करेंगे, मरकरी को इजिली हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द सिनाबार दैट इज मरकरी सल्फाइड. फॉर एग्जांपल हम देखते हैं मरकरी सल्फाइड दैट इज HgS को अगर हम हीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, अगर हम इसको ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो वी गेट HgO दैट इज द मरकरी ऑक्साइड प्लस इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड की जो गैस होगी वो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी. अब इस मरकरी ऑक्साइड को क्या करेंगे, फर्दर हीट करेंगे. तो हीट करने के बाद क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, मरकरी एंड ऑक्सीजन गैस जो भी रिलीज हो जाएगी. दैट मीन्स दिस मेटल कैन बी इजिली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑक्साइड. तो यहां पर हमें जो मेटल जो है वो किस फॉर्म में मिल गया, प्योर फॉर्म में मिल गया.
सेकेंड एग्जाम्पल जो है दैट इज सिमिलरली कॉपर सल्फाइड कैन बी ऑब्टेन। कॉपर सल्फाइड का जो नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो उसमें हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फाइड को क्या करेंगे, हीट करेंगे, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होगी वो रिलीज हो जाएगी। फिर फर्दर हम इस कॉपर ऑक्साइड को क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट किसके साथ करेंगे, कॉपर सल्फाइड के साथ। तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें कॉपर जो होगा दैट मींस वी गेट कॉपर इन द प्योरेस्ट फॉर्म प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो भी रिलीज होगी। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल्स दैट लो इन द रिएक्टिविटी और द एक्टिविटी सीरीज। The next process of extraction of metals is extracting metals middle in the reactivity or the activity series। इससे पहले जो हमने कहा extraction of metals low in the reactivity series। After low in the reactivity series अब हम ये देखेंगे कि extracting metals जो है middle in the reactivity series या फिर activity series। तो जो middle में जो हमारे metals होंगे reactivity series में, उनको हम कैसे extract करेंगे metal से। तो these metals usually present as sulfide और carbonates। जो मिडल में हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी मेटल्स प्रेजेंट होंगे वो स्पेशली किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सल्फाइड या फिर कार्बोनेट्स की फॉर्म में। सल्फाइड्स या कार्बोनेट्स की फॉर्म में मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना जो होता है वो टफ हो जाता है। इस वजह से इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स। इस चीज को इजी बनाने के लिए फिर क्या किया जाता है कि इन मेटल्स को जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है पहले उनके ऑक्साइड से। तो अब हम उनके मेटल्स को उनके ऑक्साइड से कैसे अलग करेंगे, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मेटल्स स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले हम लेंगे सल्फाइड से और फिर बाद में कार्बोनेट से। तो एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मेटल्स सल्फाइड ओर, अब हम जो एक्सट्रैक्शन करेंगे वो किस चीज से करेंगे, मेटल सल्फाइड ओर से। तो इसमें हमारी जो प्रोसेस है दैट इज द रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या करेंगे, जो सल्फाइड ओर्स है आर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड्स। रोस्टिंग की प्रोसेस में जो हमारे सल्फाइड ओर्स होंगे वो पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे, उनको हम मेटल ऑक्साइड्स में। और मेटल ऑक्साइड्स में कैसे कन्वर्ट किए जाएंगे, बाय हीटिंग। जब हम उनको हीट करेंगे स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इनको स्ट्रांगली हम हीट करेंगे किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और जब इनको हम हीट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दैट मींस वी गेट ऑक्साइड्स फ्रॉम द सल्फाइड ओर्स। For example, when zinc sulfide react with the oxygen और ऑक्सीजन फिर हम इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे, we get zinc oxide। हमें क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो भी वो हमारी रिलीज हो जाएगी। दूसरा है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स ओर। अब हम क्या करेंगे, मेटल कार्बोनेट ओर्स को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड्स में। तो इसके लिए जो हमारी प्रोसेस है दैट इज द कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन की प्रोसेस में क्या होता है, जो कार्बोनेट ओर्स आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड्स, इसमें भी हमारे कार्बोनेट ओर्स जो होंगे दे आर चेंज्ड इनटू द ऑक्साइड्स। और ऑक्साइड्स में कैसे चेंज होंगे, बाय हीटिंग स्ट्रांगली। उनको भी हम क्या करेंगे, हीट करेंगे स्ट्रांगली इन द एब्सेंस और द लिमिटेड सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन। या तो इसमें हमें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं चाहिए, या फिर अगर ऑक्सीजन हो तो वो ना बिल्कुल बड़ी लिमिटेड मात्रा में हमें जो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। वो इसलिए क्योंकि हमारा कार्बोनेट जो है वो किस फॉर्म में होता है, क्या फॉर्मूला कार्बोनेट का, CO3। तो कार्बोनेट के केस में ऑलरेडी ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है, और जब ऑलरेडी इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कैल्सिनेशन की प्रोसेस में हमें ऑक्सीजन की जो है वो बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, और अगर ऑक्सीजन है तो बिल्कुल वो ना के बराबर होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जिंक कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, मेटल ऑक्साइड, और वो किस फॉर्म में, जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो भी वो रिलीज हो जाएगी। दैट मींस बाय दिस प्रोसेस वी कैन इजीली कन्वर्ट द sulfide, metal sulfides as well as metal carbonates into the oxide forms. Now we get metal oxides। अब हमें जो है वो क्या मिल गए हैं, metal oxides मिल गए हैं। और metal oxides जो कैसे मिले, by the process of calcination as well as roasting। Next process is reduction of metal oxide to metal। अभी पीछे हमने देखा कि किस तरह से हमने मेटल सल्फाइड्स को या मेटल कार्बोनेट्स को हमने सबसे पहले कन्वर्ट किया
ऑक्साइड्स में। अब जो है हम मेटल ऑक्साइड्स को कन्वर्ट करेंगे मेटल्स में बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। सो व्हाट यू मीन बाय रिडक्शन? इट मीन्स रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। हमें यहाँ पर क्या करना है, ऑक्सीजन को रिमूव करना है फ्रॉम ए कंपाउंड। पीछे सपोज हमने जो ऑक्साइड बनाया था दैट इज द जिंक ऑक्साइड। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि रिमूव करना है किस चीज को, ऑक्सीजन को रिमूव करना है कहां से, फ्रॉम द कंपाउंड। दैट इज द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। जब मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा तो वो अकेला क्या रह जाएगा, मेटल रह जाएगा। फॉर रिडक्शन वी यूजेस सम रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिडक्शन की प्रोसेस को करने के लिए हमें कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। लाइक कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है, सच एज कार्बन। कार्बन को हम कोक भी बोलते हैं। सेकेंड आपका रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द थर्ड रिड्यूसिंग एजेंट इज द हाइड्रोजन। अगर हमने रिमूव कर रहा है ऑक्सीजन को फ्रॉम द कंपाउंड के लिए, दैट मीन्स वहां पर हमें जरूरत पड़ेगी सम रिड्यूसिंग एजेंट्स की। फॉर एग्जांपल दिस इज जिंक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड प्लस हम इसको रिएक्ट करेंगे किसके साथ, कार्बन के साथ, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, जिंक। तो यहां से क्या है, जिंक जो है यहां से ऑक्सीजन जो है वो क्या हो गई, रिमूव हो गई, और वो ऑक्सीजन रिमूव होने के बाद किसके साथ अटैच हो गई, कार्बन के साथ। दैट मीन्स जिंक ऑक्साइड टू जिंक जो होगा वो क्या प्रोसेस कहलाएगी, रिडक्शन। यहां पर जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हो गई, जिंक ऑक्साइड कन्वर्ट टू जिंक एंड दिस इज द मेटल। जिंक क्या कहलाएगा, मेटल, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो भी वो रिलीज हो जाएगी। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द रिडक्शन, हाउ यू हैव टू बी कन्वर्ट मेटल ऑक्साइड टू मेटल। Second, the last process is extracting metals top in the activity or reactivity series. हमने extraction जो है वो metals की low reactivity series में भी कर ली, middle reactivity series में भी कर ली। अब जो हमारे पास आई extracting जो होती है हम metals की top reactivity या activity series में top metals को हम कैसे extract करेंगे। तो top में हमारे activity series या reactivity series में कौन कौन से metals आते हैं, पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये जो है हमारे टॉप एक्टिविटी सीरीज में आते हैं जो मेटल्स जो हैं। अब इन मेटल्स को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, हाउ कैन यू एक्सट्रैक्ट दीज टॉप मेटल्स फ्रॉम द एक्टिविटी और द रिएक्टिविटी सीरीज। तो दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। ये जो मेटल्स हैं ये हाईली रिएक्टिव है, दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव एंड दीज आर नॉट रिड्यूस्ड विद रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऊपर हमने जैसे देखा कि हम मेटल ऑक्साइड्स को मेटल में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ सम रिड्यूसिंग एजेंट्स, पर ये जो है ये मेटल्स जो है वो हाईली रिएक्टिव है और हाईली रिएक्टिव होने की वजह से हम इनके ऊपर कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो यूज नहीं कर सकते हैं, और जब कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं करेंगे दैट मींस दे आर नॉट रिड्यूस्ड। दीज मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें किस चीज से हम उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन फ्रॉम देयर मोल्टन स्टेट। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की जो प्रोसेस होगी वो कहां पर होगी, मोल्टन स्टेट में, जो एक पिघली हुई स्टेट होती है वहां पर जो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की प्रोसेस होगी। फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, कि किस तरह से हम सोडियम को सोडियम क्लोराइड से अलग कर सकते हैं। तो इसमें दो मेथड दिए हुए हैं, मेटल डिपॉजिट एट कैथोड और सेकंड क्लोरीन लिबरेटेड एट एनोड। तो इनको हम डिस्कस करेंगे बाद में, इससे पहले हम इसको डायग्रामेटिकली क्लियर कर लेते हैं कि इस डायग्राम के थ्रू एक हमें टैंक दिया है, टैंक में हमने दो रॉड्स को डिप किया हुआ है और उन दो रॉड्स में जो है एक का जो टर्मिनल है वो नेगेटिव है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैथोड, और दूसरे का जो टर्मिनल है दैट इज पॉजिटिव, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है एनोड के साथ। और इसके साथ हमने बैटरी जो है वो अटैच की हुई है, और इस टैंक में जो हमने सॉल्यूशन डाला हुआ है दैट इज द मोल्टन सॉल्यूशन है किस चीज का, सोडियम क्लोराइड का। अब जब हम इसमें क्या करेंगे, इस टर्मिनल्स को हम क्या करेंगे, बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, या जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर जो सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो क्या हो जाएगी, वो टूट जाएगी, और जो सोडियम होगा वो क्या करेगा, अट्रैक्ट टुवर्ड्स द
कैथोड दैट इज नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव के साथ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है. ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड सेम चार्जेस आर रिपेल ईच अदर, वेयर एज क्लोरीन अट्रैक्ट्स टुवर्ड द एनोड दैट इज पॉजिटिवली चार्ज. तो यहां पर क्या है कि जो सोडियम है वो कहां पर डिपॉजिट हो जाएगा, एट द कैथोड, और क्लोरीन जो है दैट इज लिबरेटेड एट द एनोड, और क्लोरीन गैस जो होगी वो एनोड से होते हुए बाहर निकल जाएगी. एंड सोडियम इज द मेटल वेयर एज क्लोरीन इज द नॉन मेटल. और इस डायग्राम में फिर यहाँ क्लियर हो गया कि मेटल जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा एट कैथोड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सोडियम, वेयर एज क्लोरीन जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ नॉन मेटल एंड क्लोरीन लिबरेटेड एट द एनोड. क्लोरीन जो है वो एनोड से लिबरेट होते हुए वो गैस जो होगी वो बाहर निकल जाएगी. एंड दिस प्रोसेस इज एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स top in the activity or the reactivity series. In the extraction of metals from ores, we have 3 steps taken. First step is the enrichment of the ores, second step is the extraction of metals, and the last step for the extraction of metals from the ores is the refining of metals. This is the last step. In the refining of metals, electrolysis widely used for the metal refining. metal की refining के लिए मेनली हम जो प्रोसेस यूज करेंगे दैट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस. व्हेन करंट पास थ्रू इट, जैसे ही हम इसमें करंट पास करेंगे, जो इम्प्योर मेटल होगा दैट डिसॉल्व्स इनटू द इलेक्ट्रोलाइट. जो इम्प्योर मेटल होगा वो कहां डिसॉल्व हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट में. एन इक्वलेंट अमाउंट ऑफ द प्योर मेटल, और जो प्योर मेटल होगा फ्रॉम द सॉल्यूशन वो कहां पर डिपॉजिटेड होगा, कैथोड के ऊपर. The insoluble impurities settle down. जो insoluble impurities होंगी वो settle down हो जाएंगी at the bottom of the anode and is called as the anode mud. तो यहां से हम इसको एक डायग्रामेटिकली देखते हैं कि हम एक टैंक लेंगे और उस टैंक में हमने जो सॉल्यूशन डाला है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला हुआ है, CuSO4, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन. अगर हमने कॉपर का सॉल्यूशन लिया तो हम इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है. अगर हमने एल्यूमिनियम का लिया होता तो हम एल्यूमिनियम सल्फेट लेते. तो इस टैंक में जो हमारा सॉल्यूशन है दैट इज द एसिडिक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. अब इसमें हमने 2 रॉड डिप की हुई हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज जो है वो शो कर रही है कैथोड को, और जो पॉजिटिवली चार्ज है दैट शोज द एनोड. अब इन दोनों टर्मिनल्स को हमने कनेक्ट किया हुआ है बैटरी के साथ, और यहां पर हमारा स्विच है. तो ये जो हमारी कैथोड वाली रॉड जो होगी वो हमें थिन लेनी है, और जो एनोड वाली रॉड जो होगी वो हमें थिक लेनी है. तो जैसे ही हम इसमें करंट पास करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, और स्विच ऑन करते ही जैसे ही हमारा करंट पास होगा, तो करंट पास होने से हमारा जो कॉपर जो है उसका लगातार डिस्चार्ज होगा, और डिस्चार्ज होने के साथ जो हमारा ऑलरेडी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इस टैंक में है, उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ मिलता हुआ ये कैथोड की तरफ जो होगा वो ट्रांसफर करेगा. और जो हमारी इंप्योरिटीज होंगी दैट दे आर जो impurities and they are settled down at the anode, या फिर हम इसको एनोड मड भी बोलते हैं. और जो हमारा प्योर कॉपर का सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी जो टैंक में हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसके साथ अटैच करते हुए वो कैथोड की तरफ ट्रांसफर करेगा. और ये जो एनोड वाली जो टर्मिनल है हमारा, या जो हमारी रॉड है एनोड वाली, वहां पर क्या है, जो हमने ऑलरेडी थिक ली हुई थी तो वहां से लगातार कॉपर का डिस्चार्ज होने की वजह से वो जो रॉड है वो पतली होना शुरू हो जाएगी. और जो कैथोड की रॉड जो थी, जो कि हमने पहले पतली ली हुई थी, अब लगातार ये जो हमारा कॉपर जो डिस्चार्ज हो रहा है एनोड से, वो लगातार अब किस तरफ जा रहा है, वो कैथोड की तरफ ट्रांसफर कर रहा है इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ मिक्स होकर. तो ये जो रॉड है वो हमारी क्या होना शुरू हो जाएगी, थिक होना शुरू हो जाएगी. सो दिस इज द डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स. और जो इंप्योरिटीज होंगी दैट मींस दे आर सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड और द एनोड मड. तो यहां पर हम देखेंगे कि जो एनोड है, एनोड पर जो हमारा कॉपर है, कॉपर के ऊपर जो चार्ज होता है वो 2 पॉजिटिव होता है. दैट मींस 2 पॉजिटिव होने की वजह से वो कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगा. और एट द कैथोड, कैथोड के ऊपर उसका चार्ज जो कॉपर का वो क्या है, 2 पॉजिटिव. 2 पॉजिटिव होने के साथ वो कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगा, 2 का, और क्या बनाएगा वो, कॉपर. सो दिस इज द these are the processes for the extraction of metals from their
ores. 3 steps we have to be taken for the extraction of metals from the ore. That is the enrichment of the ores. Second is the extraction of metals, and the last is the refining of the metals. And after the completion of the extraction of metals from their ores, last topic of this chapter is the corrosion. And corrosion हम already first chapter में पढ़ चुके हैं. तो फिर चलो हम देखते हैं यहाँ पर corrosion क्या कहता है. The surface of some metals corroded when they are exposed to moist air. जो सरफेस है कुछ मेटल्स का वो क्रोडेड हो जाता है, उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, ये गलना शुरू हो जाता है जब वो किसके कांटेक्ट में आता है, जब हम उनको खुला छोड़ देते हैं मॉइस्ट एयर में फॉर ए लॉन्ग टाइम के लिए. तो दैट प्रोसेस इज नोन एज द क्रोजन. क्रोजन में क्या है, सिल्वर बिकम्स ब्लैक. जो सिल्वर है वो क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है जब हम उसको किसके कांटेक्ट में रखते हैं, मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में. कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड. कॉपर जो है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और फिर वो क्या बनाता है, ग्रीन कोट बनाता है किस चीज का, कॉपर कार्बोनेट का. लास्ट, आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर. जब हम आयरन को, लोहे को किसके कांटेक्ट में ले आते हैं, मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में ले आते हैं, एक्वायर कोटिंग ऑफ ब्राउन सब्सटेंस. और उसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो किस चीज की बन जाती है, ब्राउन सब्सटेंस की बन जाती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, रस्ट. आफ्टर corrosion, what are the various steps for the prevention of the corrosion? The corrosion can be prevented by, corrosion से हम कैसे बचा सकते हैं मेटल्स को, by painting, oiling, greasing, galvanization, chrome plating, anodizing और making alloys. corrosion से हम मेटल्स को प्रिवेंट कर सकते हैं जब हम उनके ऊपर पेंट अप्लाई करेंगे, ऑयलिंग करेंगे, या फिर ग्रीसिंग करेंगे, गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस अप्लाई करेंगे, क्रोम प्लेटिंग करेंगे, एनोडाइजिंग करेंगे, या फिर मेकिंग एलॉयज. तो पेंटिंग आम करते हैं तो उसके ऊपर जंग नहीं लगता है, ऑयलिंग करेंगे तो भी नहीं लगेगा, या ग्रीसिंग करेंगे तो भी हम उसमें क्रोजन लगने से बचा सकते हैं. हम गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन करेंगे. अगर हम गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन कर देते हैं, दैट मींस क्रोम प्लेटिंग एंड एनोडाइजिंग जस्ट सेम एज लाइक ऑफ द गैल्वेनाइजेशन. एंड आफ्टर गैल्वेनाइजेशन वी डिस्कस अबाउट द एलॉयज. सो फर्स्ट प्रोसेस इज गैल्वेनाइजेशन. इट इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील. ये एक ऐसा मेथड है, ये ऐसी प्रक्रिया है जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है स्टील को या फिर आयरन को किस चीज से, फ्रॉम द रस्ट. रस्ट से ही प्रोटेक्ट करता है स्टील एज वेल एज आयरन को. किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक. क्योंकि उनके बाहर वो एक लेयर बना देता है, कोटिंग लेयर बना देता है किस चीज की, जिंक की, जिस वजह से उसमें जो है वो कोरोजन नहीं होता है. दूसरा है, और सेम एज क्रोम प्लेटिंग एंड एनोडाइजिंग में भी यही मेथड होगा, जस्ट सेम एज लाइक दैट ऑफ द गैल्वेनाइजेशन. एंड आफ्टर गैल्वेनाइजेशन एलॉयज, ये भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है, दो या दो से अधिक मेटल्स या फिर मेटल या नॉन मेटल का. तो दिस इज नोन एज द एलॉयज. एंड फॉर द मेन एग्जांपल्स ऑफ द एलॉयज आर आयरन. आयरन में जो कंटेंट है वो किस चीज के, आयरन प्लस कार्बन के, जो कि कार्बन का अमाउंट कितना है, 0.05%. दूसरा हमारा आता है स्टील. स्टील में क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स हैं, आयरन, निकल एंड क्रोमियम. Next is the brass, and the main constituents of the brass are copper and zinc. And the last one is the bronze, and the main components of in the bronze are copper and tin. So this is all about this chapter, that is metals and non-metals, and I hope you will understand all the concepts very clearly.